Students, hope you are doing well. In previous class, chapter 1 matter in our surrounding was completed. So in this class, we will discuss all questions. First in English, then in Hindi. So look up to the last. Now start from page number 3. Question 1 is from definition of matter. Do you remember definition of matter? I taught in first video, part 1 of this chapter. But I repeat, matter occupies space and have mass. Question 2 is from characteristic of particles of matter. Question 3 is also characteristic of particles of matter. In question 4, you have to write all three characteristic of particles of matter. Now next page. Page number 6. Question 1 is from the definition of density already given here. Just I am explaining with simple example. Density words come from dense, and dense means in one place there are so many particles close together. Density depends upon number of particles. In short, we can say more particles, more density, less particles, less density. Question number 2 is important question. A part is from characteristic of particles of matter. For answer, to make 3 columns and write differences among solid, liquid and gases. B part is also from the same topic, but here you have to take particular term like rigidity, compressibility, etc. and then write the differences among solid, liquid and gaseous state. Question 3 is a reasoning based. You have to write all answer on the basis of general characteristic of matter. Question 4. Actually, question 4 is related to density, but there are important knowledge is there that when water freezes to form ice, then a number of empty spaces are created in the solid ice. And these spaces create a cage-like structure. So remember, cage-like structure are present in ice, and make sure that you have to mention this word cage-like structure in your answer. Now, next page. Page number 9. Question 1 is formula based. You have to convert Kelvin scale to Celsius scale. Question 2 is from boiling point and melting point of the state of matter. Question 3. For this answer, you have to mention latent heat of matter. Question 4 is not coming frequently, so we can skip this question. Now next page. Sorry. Question 1 is related to evaporation and question 2 is related to vaporization. Pinpoint of the both question. Do not require a boiling point for evaporation, but in case of vaporization, it needs. Question 3. This question is related to volatile nature of matter. Volatile means matter can change its state into vapor easily. Question 4. Question 4 is related to surface area, means vaporization will increase when surface area increases. Question 5. For this question, to write absorbing property of cloth and mention latent heat of the vaporization also. Next.
Okay, back exercise. Question 1 is related to formula based, as you know. In this, you have to convert Kelvin scale to Celsius scale. Question 2 is also related to formula based. In this, you have to convert Celsius scale to Kelvin scale. Question 3. Reasoning question. And reasoning question is also important. A part is related to sublimation process and B part is related to diffusion property. Question 4 is related to characteristic of particles of matter. Question 5 is related to topic state of matter. Question 6 is related to general property of state of matter, which I taught in part 1. For this, you can see part 1 video. Question 7. Question 7 is related to latent heat. Question 8. Question 8 is also related to latent heat. Question 9, most important question. Question 9 is related to process of conversion. For this, you can go through part 3 of this chapter. Okay class, I have explained all the corners of this chapter where the question comes from along with pinpoint. Hope you understand. Be sure to check out question corner after finishing any chapter. Lastly, you should study the chapter thoroughly to have a good control over the chapter. Now I am explaining in Hindi from page number 3. Yes, question number 1 is from definition of matter. Question number 2, 3 and 4 all are related to characteristic of particles of matter. But in question number 4, you have to write 3 characteristics of particles of matter. Next page is page number 6. Yes. First question is based on density. Look at this. यहाँ पर क्या है आपका कि डेंसिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है. इस डेंसिटी के डेफिनेशन से तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझाती हूँ डेंसिटी क्या होता है. डेंसिटी वर्ड जो है वो डेंस से बना है. ठीक है. अब डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब होता है, लिटरल हिंदी होता है घना, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में. यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह लेंगे और वहां बहुत ज्यादा मात्रा में यदि पार्टिकल्स है तो हम कहेंगे कि ये घना जगह है. यदि कोई दूसरा जगह ले और वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो बोलेंगे हम यहाँ कम घना है. तो ऐसा ही है. अब आप आराम से इसके क्वेश्चन को लिख सकते हो. चलिए अब आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो अपना है, यहाँ क्या है आपका, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से है, लेकिन इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम्स बनाने होंगे. 3 कॉलम्स बना करके फिर उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस लिख देंगे और सबके डिफरेंसेस को लिखेंगे. बी पार्ट में आते हैं. बी पार्ट में भी क्या है कि हमको तीनों स्टेट्स को लेना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट को, लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर के तब सबके बारे में लिखना है. जैसे यहाँ रिजिडिटी दिया हुआ है तो रिजिडिटी का पहले सॉलिड के बारे में लिखेंगे, फिर लिक्विड के बारे में लिखेंगे, फिर गैसेस के बारे में लिखेंगे. सेकंड टर्म लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कैसी थी, लिक्विड की कैसी थी, गैस की कैसी थी, लाइक दैट. अब यहाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है और इन सब के आपको रीजन लिखने पड़ेंगे. ये किससे होगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो मैटर था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर उससे बेस्ड है और उससे आपको लिखना पड़ेगा. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्चुअली ये भी जो है डेंसिटी बेस्ड ही है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आई थी, क्या, केज लाइक स्ट्रक्चर. अब ये केज लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर जब हम पानी को ठंडा करके बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे एयर बबल्स बर्फ में आ जाते हैं
और वो जो छोटे छोटे एयर बबल्स बर्फ में आ जाते हैं उसी को केज लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको ये पिन पॉइंट लिखना जरूरी है, केज लाइक स्ट्रक्चर। इससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। पेज नंबर होपफुली 9 था, यस। यहाँ आते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ये पहला क्वेश्चन जो आपका है वो फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको ठीक से याद है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ लेटेंट हीट ऑफ मैटर के बारे में मेंशन करना जरूरी होता है इसमें। एंड क्वेश्चन 4 जो है ये जनरली देखा गया है कि नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, ये दिस वन। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या है, पहला क्वेश्चन जो है एवोपरेशन से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन वेपराइजेशन से रिलेटेड है। एंड दोनों का पिन पॉइंट क्या है कि एवोपरेशन के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन वेपराइजेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट का होना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये जो है वॉलेटाइल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड है। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब कोई मैटर गैसियस स्टेट में जल्दी से बदल जाए तो उसको कहते हैं उसका वॉलेटाइल नेचर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है सरफेस एरिया से रिलेटेड है। इसमें सरफेस एरिया को यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वेपराइजेशन प्रोसेस जल्दी होगा। सरफेस एरिया को कम करेंगे तो वेपराइजेशन प्रोसेस कम होगा। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना करके अपने हिसाब से लिख लीजिएगा क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोथ्स के बारे में लिखना होगा, साथ में आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन को भी लिखना पड़ेगा। अब आगे आते हैं। अब शायद बैक एक्सरसाइज ही है अपना, यस। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों फार्मूला बेस्ड है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है क्या, केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में। एंड दूसरे वाले में उल्टा करना है, सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है और रीजनिंग क्वेश्चन हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये सब्लिमेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, जिसको मैंने थर्ड पार्ट में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो क्या है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, फिर से रीडिंग क्वेश्चन। तो ये क्या है, आपको इसके दोनों के आंसर के लिए आपको पार्ट 1 वाला वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको लेटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप लेटेंट हीट आपको यदि लेटेंट हीट के बारे में सही जानकारी है तो आप इसको लिख सकते हो आसानी से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी लेटेंट हीट से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये या तो इंटरनल में आ जाता है, नहीं तो फिर एक्सटर्नल एग्जाम में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही है, हो सकता है कि इसको छोटे पार्ट में भी करके दे दे, यानी 2 ही ले ले, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड, ऐसा लेकर के बता सकता है, पूछ सकता है। फिर या तो यहाँ ले लेगा कि लिक्विड से गैस एंड गैस से लिक्विड। ये ABCD जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको प्रोसेस का नाम लिखना है। जैसे A का क्या प्रोसेस होगा, B का क्या, A के प्रोसेस के लिए क्या समझाना है हमको कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो किस प्रोसेस से कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां A वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर हम B बॉक्स में आते हैं, तो B बॉक्स में क्या, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो वहां हम उस प्रोसेस का नाम लिखेंगे। तो यानी कि जितने भी बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखना है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in the comment section below.
See you in next class.